Hello, it's me. And I'm going to talk about something which is a little informative today, a little educational, something around what education is all built upon. So, we know that from the very beginning, whenever we go to school, specifically for those who study in India, they know that they are often uh, introduced to education in parts, and these parts, every part is known as a subject. Now the same thing happens in US, in Europe, in South America, in Asia, in Africa, Asia except for India obviously. And subjects are something which exactly builds up the understanding of a person who needs to know how the world works. So there are different subjects which are studied in India and overseas. So basically everything around the world, they revolve around these orbits which are subjects. And for instance, mathematics is one, science is one, history is one, civics or political science, politics is one, and we build our understanding. English is there, languages, different languages. In India, we study Hindi, we study Sanskrit, we study different regional languages. Some school have foreign languages to build up on the education or the knowledge that a person can withhold within them minds. And there's a lot that goes into the entire thing. This is what comprises of your school's curriculum. This is what makes or breaks it. So you are shoved with facts from different subjects, and on a daily basis you keep studying these, because at the end of the day किसी को भी ये समझ में नहीं आता है कि उनको पढ़ना क्या है. What subject interests them, कौन से सब्जेक्ट में उनको मज़ा आ रहा है, that is a very important part. तो across the globe this is the same thing. The only thing is बाहर some schools they give the opportunity कि हाँ तुम चूज़ कर लो, थोड़ा बहुत उठा लो, इधर से भी पढ़ लेंगे उधर से भी पढ़ लेंगे, और वो उसके हिसाब से लेवल सेटअप हो जाते हैं कि हाँ जितने साल तुम एजुकेशन में लगा रहे हो उतना तुम अचीव कर सकते हो इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन एक सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो वहाँ पे यू कैन सी दैट हाँ हो रहा है. But usually in India, in the Asian context, you have a very preset kind of an education setup कि हाँ तुम ये बने बनाए सब्जेक्ट्स ही पढ़ोगे, ये हमारे टीचर्स तुम्हें पढ़ाएंगे और तुम इन चीज़ों को सीखोगे, बिकॉज यही तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे. दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू मेक अ करियर आउट ऑफ. टू दोज आई वुड से मुझे आज भी टैक्स करना नहीं आता. करियर तो बन जाएगा, पैसे कमा लूँगा, बट उसका जो हिसाब मांगेगी सरकार उसका मैं क्या करूँ. सो सब्जेक्ट्स आर व्हाट दे कंप्राइज of the entire school's curriculum. Same way it goes in college. In India, there are different boards which have a different approach, और वो कोई चीज़ को ज़्यादा पढ़ाते हैं, कोई चीज़ को कम पढ़ाते हैं. तो उस हिसाब से इंडिया में ICSE है, इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, देन द CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. उसके अलावा भी कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये क्या पढ़ा रहे फालतू का, या फिर यार ये जो भी पढ़ा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम अपना खुद का बनाएंगे. एंड दैट इज़ वेयर स्टेट बोर्ड्स कम इन. वो अपने हिसाब से बनाते हैं. अलग अलग स्टेट बोर्ड में अलग अलग लैंग्वेजेस पे पढ़ाई होती है. पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम 12वीं पास नहीं हो तो फिर IIT या फिर मेडिकल के एग्ज़ाम कैसे दोगे. सो हाँ, ऐसे ही हर जगह पे अलग अलग बोर्ड्स हैं. देयर इज़ वन कॉल्ड IB, इंटरनेशनल बैकलरेट, जो कि US या UK का बोर्ड है. आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट हाँ ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट बोर्ड्स होते हैं, अलग अलग सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं, कुछ प्राइवेट बोर्ड्स होते हैं जो कि अपने हिसाब से पढ़ाई कराते हैं ताकि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में वो पढ़ा सकें. तो ऐसे ही देयर आर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स इन पाकिस्तान. So for this podcast, we were talking about Pakistan. I was discussing with my friends about Pakistan and उनके यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है. तो वहाँ पे भी ऐसी होती है.
तुम ऐसे अलग मत सोचना कि हाँ कुछ नया आएगा कुछ इधर। वहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी की जगह वहाँ पे उर्दू पढ़ाते हैं, मैथ्स होता है, साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, दे स्टडी एवरीथिंग एंड देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स जिन पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। द वन थिंग दैट आई सॉ, बिकॉज मैं इसके बारे में देख रहा था, तो आई वॉज लुकिंग एट दिस एंड आई सॉ दैट दे डोंट हैव हिस्ट्री, दे हैव वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री देखा, वहाँ पे देखा है कि यूएस में ये हुआ था, उसकी वजह से उनका इंडिपेंडेंस आया, फलाना ढिमाका, बट उनका खुद का हिस्ट्री वहाँ पे था नहीं। नॉट लाइक कि उनका खुद का हिस्ट्री है नहीं, आई मीन हाँ, अब मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में जब इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने लायक। बट येस, ओके, 60 साल 70 साल में भी बन जाती हिस्ट्री, थोड़ी बहुत तो बननी ही चाहिए। तो पाकिस्तान डज नॉट हैव हिस्ट्री। पाकिस्तान में दे स्टडी समथिंग जो कि बाकी जगहों पे नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ बेसिकली उनका हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक होता है, जिसमें वो बताते हैं कि पाकिस्तान फॉर्म कब हुआ, क्या हुआ, जिन्ना ने क्या किया, बिकॉज ऑनेस्टली किसी और ने तो कुछ किया नहीं था, जिन्ना ही उंगली कर रहा था तभी हुआ। सो या तो जिन्ना ने जो जो चीज़ें की जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या किया, कौन से वॉर्स लड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट किया, इकोनॉमिक्स कैसे बनी, वो सब चीज़ें उन्होंने ठूस दी है पाकिस्तान स्टडीज़ में। एंड प्रॉबली 80 साल में 100 पेज की 2 किताबें तो बन ही गई होंगी। तो या तो इन्होंने पढ़ा दिया। एंड जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम होता है पढ़ाने का, या फिर स्टेट रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से मीडियम सेट होता है, वहाँ पे भी यही होता है कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं और उर्दू में पढ़ाते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे जिन्होंने ट्राई किया होगा कि हाँ देखे तो कि क्या पढ़ाते हैं एग्जैक्टली पाकिस्तान स्टडीज़ में। तो मैंने खोला ऑनलाइन, टाइप किया पाकिस्तान स्टडीज़, पता की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स देखी, तो ऑनलाइन कहीं पे भी आपको ये चीज़ इंग्लिश में अवेलेबल नहीं मिलेगी। ये उनका क्लेवरनेस है कि वो अगर ऑनलाइन अवेलेबल कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक को, वो उर्दू में ही करेंगे। इससे उन्होंने क्या किया, इनका नैरो डाउन हो गया ऑलरेडी कि हाँ ऑलरेडी जिनको उर्दू नहीं आती वो तो पढ़ नहीं सकते। तो अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो हमारा हिस्ट्री तुम कैसे कॉन्फ्लिक्ट करोगे? यू कांट क्रिएट अ डिबेट। अगर उन्होंने बोला कि पार्टीशन के पीछे या फिर जो वायलेंस हुआ पार्टीशन के साथ, दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ महात्मा गांधी एंड नॉट जिन्ना, जो कि हमारे हिस्ट्री बुक्स में लिखा होता है कि जिन्ना ने किया था, नॉट महात्मा गांधी। उस चीज़ पे डिबेट होगी कैसे जब उर्दू नहीं आती? आई एम नॉट सेइंग कि जिन्ना ने किया या महात्मा गांधी ने किया, बट हाँ, सो इट्स ऑल ओनली अवेलेबल ऑन ऑनलाइन इन उर्दू, ताकि तुम पढ़ पाओगे तभी समझ पाओगे। और टू बी ऑनेस्ट यार, राइट टू लेफ्ट पढ़ना थोड़ा अनोइंग हो जाता है। तो ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू रीड 100 पेज बुक, और वो 100 पेज बुक पढ़ने के लिए अगर तुम्हें एक्स्ट्रा 4 महीने लगे समझने के लिए कि लिखा क्या है, यू प्लेड वेल पाकिस्तान, आई मस्ट से। सो अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो उसको क्रिटिक करना तो दूर की बात है। एंड दिस ऑल्सो मीन्स कि तुम्हें भी पता है कि इसमें क्रिटिक होगा, क्योंकि हम एटलीस्ट मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ कि हाँ इंडिया में इंडियन हिस्ट्री पे इतना क्रिटिक हो सकता है जब सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, हम पढ़ पा रहे हैं। तुमने अच्छे से अपना गिरेबान ढका है, तो कूडोस। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, बिकॉज ये चीज़ मुझे बस एक दिन ऐसे ही लगा कि क्यों नहीं इसके बारे में भी तो कुछ होगा, या फिर इस पर भी शायद मैं कुछ बोल सकता हूँ। बट बिना पन्ने खोले मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया। इफ़ यू लाइक दिस एंड यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, दैन प्लीज़ हिट लाइक, शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब दबा दो। क्या ही जाता तुम्हारा, गिनती के तो लोग देखते हो, तो तुम्हें अगर बेल आइकन दबाने पे नोटिफिकेशन आएगा तो वो गिनती तो कम नहीं होगी। एंड कमेंट में लिखो कैसा लगा, क्या गलत था। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल हु वुड बी सेइंग कि हाँ हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इंडियंस के बारे में कुछ नहीं लिखा, तू जाके पाकिस्तान में ही रह ले। सो यस, डू दैट।
If you're listening to this on Spotify or any other podcasting platform, please follow this if you like it. I'll be coming up with more stuff soon. Thank you so much. Have a lovely day. Stay safe.